Alright, so we're planning to do rhinoplasty for this gentleman, and you can see the nose. There's a small hump here, and then there's a depression. There's lack of support on the tip, and there's a bifid nose here. Bifid meaning the tip is in two. The alar cartilage comes and doesn't join together in the center, so we'll have to dissect that and get the tip together like this. He's also concerned about this pinching kind of a defect on the lateral base of the alar, so you're going to correct that. Little bit of width is also going to be corrected. There's a slight deviation if you see here carefully. There's a bone sticking out there, and it's going on to the left side, right side of his face, and then comes like a small curve. So we're going to take care of that also. Yes, sir, and you can see that slight deviation, a small bend or whatever. You can also see from this side. So all of that is going to get fixed. We're going to make it straight, the bone, the hump, and also the septal work. So this is a revision procedure. So he's had a surgery. कितने साल पहले आपको हुआ था? 18 years old था, 6-7 साल हो गए. So 7 साल पहले इनका एक और सर्जरी हुआ था नाक में. तो it's a revision procedure. इसके वजह से I have told him that if needed we will be harvesting the rib, because you know we need to give support for the septum, septal reconstruction. On the scans it doesn't look like I might need it. It's like sometimes when you have a patient like this, I would be able to manage without a rib, but really depends when I open and see. Part of the septum is already missing, part of the work on the upper lateral is also missing, but we would still be able to reconstruct that, hopefully without the rib, or in a worst case scenario we'll take the rib, and still it's not going to be a problem for you. Thank you. ये जो bend है bend सीधा होगा, ये जो depression है depression improvement होगा, ये टिप जो बाइफिड है ये एक होगा और नैरो होगा पूरा. ये यहाँ से जो ज़्यादा ब्रॉड है वो सब नैरो हो जाएगा. हाँ, ऊपर से भी नैरो होगा, ऊपर से पूरा शेप हो जाएगा, स्ट्रेट नॉर्मल परफेक्ट नोज हो जाएगा. थैंक यू. ठीक है. मैडम ने कुछ कहा आपसे? मैनेजी मैडम, ऑपरेशन के बाद सांस मुंह से लेना है क्योंकि नाक बंद रहेगा. हाँ, तो अवश्य स्टार्ट ब्रीथिंग टू द माउथ. సెక్షన్ ఏమో సార్? கண்டிப்பாக வேணும். பூஜி வேணும். கொடு இவ்வளோ கொடு. இது ப்ரெஷர் கொடுங்க. ఓకే సార్. And you can see how the bone is deviated to the right, the tip towards the left. There's bifid nose. We're going to take care of all of this. Line. I'm going to show you how we look in a while. Let me show you all. Okay, you can see that deviated bifid tip, broad dorsum. And that's the correction. So, and you can see just before. Probably was there a bifid tip. You can also see a depression after the dorsum, and now it's one straight line. You can see that. That's the front view. One more time. This is actually corrected.
ठीक है। अरे नहीं, आपको थोड़ा इसी से उतर के आ रहा है। बढ़िया। आपको तो बहुत ही इजी आ गया। रिजल्ट भी अच्छा हो। पक्का। हाँ, ये साउंड आ रहा है बोन का। हाँ, वो इतना टाइट था ना, तो इसकी वजह से। थोड़ा सा क्लीन कर लूँ तो फिर आपको ये हिल रहा है सर, बोन हिल रहा है बीच में। थोड़ा सा हिलेगा ना, बिकॉज अभी भी फ्रैक्चर भी किया है बहुत, आपका डिवेटेड था। तो एक मिनट, कनाडी गुड़ा उंगली। हाँ, आप देख लीजिए। अच्छा है अभी तो। अभी तो अभी स्वेलिंग है ना काफ़ी। इतने केयरफुल हो अभी तो। अरे बाद में और भी अच्छा होगा। हाँ, अच्छा दिख रहा है। अभी स्ट्रेट दिख रही है बोन, ये बीच वाली। हर जगह स्ट्रेट है, बीच वाली नहीं, पूरा ही स्ट्रेट ये है। स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट हो गया। हाँ, और साइड में जाके देखो, बहुत ही बढ़िया लगेगा। थैंक यू डॉक्टर। यही है थोड़ा सा, जब मैंने बताया आपको जो स्किन था वहाँ पे, जो वहाँ पे बेंड था आपका, देखो जगह पे, वो भी चले जाएगा। ओके। आपने जब सर्जरी हुआ था, जब मैंने दिखाया ना, थोड़ा और प्रोमिनेंट था। ओके। अभी देखो ऑलमोस्ट नहीं है। हाँ, अभी साइड व्यू में थोड़ा सा दिख रहा है, पर बाकी व्यू में दिखेगा नहीं। ये देखो उबड़ खाबड़, मतलब हाँ। यहाँ से पूरा वेवी चल रहा है आपका। ये ऐसा नहीं होगा अभी। ये डॉक्टर स्वेलिंग कम होने में कितना टाइम लग जाएगा पूरा? 4 हफ्ता। ओके। सेकेंड फेज ऑफ हीलिंग। ओके। पूरा एकदम नॉर्मल फील करने के लिए तो आपको लग जाएगा और 3-4 महीने, और 3-4 महीने लग जाएंगे पूरा हील होने के लिए। ठीक है। ये भी में देखिए कितना फ़र्क है। यहाँ पे देखो मेरे साइड पे, बहुत फर्क है इस पे तो बहुत ही फ़र्क है। तो वो क्यों होता है ना, बिकॉज एक साइड आपका नोज बेंड था। हाँ, तो उसके वजह से ऑपोजिट साइड से व्यू में ज़्यादा दिखता है। बहुत अच्छा कर दिया डॉक्टर साहब ने। थैंक यू। थैंक यू तो हमें आपका कहना चाहिए। नहीं, हर चीज़, हर कॉम्प्लीमेंट के लिए भी तो थैंक यू बोलना है। ये डॉक्टर साहब ये क्या हो रखा है यहाँ? तो वहाँ पे वो जो कलर की बात कर रहे हो कि वो सब ब्रूजिंग, डॉट नहीं डॉट तो आपकी स्किन का ओरिजिनल जो पिंपल्स आते थे ना, ये जो है एक पिंपल की तरह है यहाँ पर है, वो सब। अच्छा। और वो स्किन का है, वो मैंने जो वो मेरा वो मार्क ऑस्टियोटमी के लिए कट किया है। ये भी पूरा सूचरिंग, ये सब पूरा निकल जाएगा अभी आपका। ओके। बढ़िया रहेगा। आपको अगले बार ये करना चाहिए, जीनियोप्लास्टी जॉ स्कल्पटिंग, तब जाके पावरफुल। नहीं अभी इतना ही ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती थी वो ठीक हो गई है, और बस इसी में आप देखो बाद में आपको ऐसा फील होगा। हाँ, बहुत चेंज हो जब गया। नोज अब आपका इतना बढ़िया हो गया, स्ट्रेट और स्ट्रांग ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोपोर्शन अभी इस पे जाएगा। फिर भी अदरवाइज इसके बाद मुझे ब्रीड है। हाँ, वो सही adjust करने है। के लिए। वो तो आपको, आपके लिए वो इजी रहेगा। हाँ, वो तो अब नाक अच्छी तरह से ख्याल करना है, बिकॉज देखो डिविएशन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ऑस्टियोटमी किया है। ठीक है। देखो ये यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ से यहाँ, और फिर बाइफिट टिप, मेन इश्यूज पूरा स्ट्रेट किया है, विच मीन्स दैट बोन टेक्स 4 वीक्स टू हील देयर एवर। ओके। आपके इस पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, Okay. तो 1-2 ज़्यादा हफ्ता ही देना पड़ेगा, 4 to 6 वीक्स। ठीक है। मतलब क्या है, चश्मा नहीं पहनना, प्रेशर नहीं करना, लगना नहीं चाहिए ऐसे, गोद में बच्चों को मत बिठाओ, बी केयरफुल। आप अच्छी तरह से केयर लोगे तो मैं अगर 100% भी नहीं, 95 से ऊपर परसेंटेज आपको मिल गया है ऑलरेडी। 100% मैं क्यों नहीं बोलूँगा, बिकॉज थोड़ा 1 मिलीमीटर यहाँ वहाँ हो सकता है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, आपको शायद मालूम पड़ेगा। आप पास में आके देखोगे तो मतलब ये जो है कुछ तो हो सकता है। हाँ, इतना तो हो सकता है, वेरी मिनिमल, जब इतना मेजर है प्रॉब्लम, इसकी वजह से बता रहे हैं। लेकिन किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपको कभी सर्जरी हुआ है। नेचुरल फील होगा, नेचुरल लुक होगी। हमें आप बाद में भी फ़ोटो भेजो,
वीडियो भेजो हो सकता है वीडियो तो भेजेंगे। देखते हैं। बहुत पेशेंट्स ये तो बोलते नहीं ऐसे, हाँ। काफ़ी कम पेशेंट्स बोलते नहीं हैं। मैं तो इसलिए ना सुरेंद्र भाई साहब भी हाँ, आए थे ना, हाँ। बोले कि मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैं तो खुद कह रहा कि वीडियो बनाओ यार, कि हमारे जैसे कितने अरे लोग वो होते तो हैं। वो उनके साथ भी दोनों ने नहीं मना किया, और उसका नोज इतना बड़ा था, इतना मुश्किल था, फिर भी मैंने उनको बताया, वो नहीं किसी को भी नहीं दिखाना मेरा फोटो, नहीं, छुपा के रखो। जिसको प्रॉब्लम होती है ना उसने देखा होता है कि मैंने इतनी प्रॉब्लम झेली है यार, मेरी वजह से किसी का काम आ जाए तो कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी को पता लग जाए इतना डेविएटेड नाक सीधा हो गया तो हर बंदा चाहेगा, क्योंकि हर डॉक्टर जाता है वो कहता है कर देगा, पर वो करता नहीं है। मैंने 2 ऑपरेशन करवाए पहले। वो बताइए, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो सर्जरीज पहले कराई ये बता दीजिए। पहले एक सर्जरी मैंने फिरोजपुर से करवाई थी, एक बड़ी और सर्जरी हुई थी सेप्टोराइनोप्लास्टी, वो जलंधर से हुई थी। तो वो ये अच्छा रिजल्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है। और रिविजन राइनोप्लास्टी हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं हमारे व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि आप पहले कहीं ट्राई करके फिर यहाँ आने का प्लान मत करो। हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना, आप नहीं थे। नहीं बस ऐसे भी कोई प्लान करेगा, अरे इनका तो पहले एक चांस है, दूसरा चांस। ये रिविजन राइनोप्लास्टी में आप, इसीलिए हम इसको 95% बोल रहे हैं, फिर भी शायद 100% मिल जाएगा। बट रिविजन राइनोप्लास्टी इज ऑलवेज डिफिकल्ट, ऑलवेज चैलेंजिंग, बहुत ही मतलब समथिंग दैट यू शुड नॉट प्लान फॉर। तो पहले ही मेक अ राइट डिसीजन एंड मेक श्योर देयर इज नो नीड फॉर अ रिविजन सर्जरी, है ना? कल निकल रहे हो आप? कल हाँ ठीक है, और ध्यान से जाइए। ठीक है। और हमारा जो दूसरा नंबर है, पहला जो कांटेक्ट नंबर में नहीं, हाँ, जो अभी मैनेजर हाँ मैनेजर वाला। वो नहीं, हाँ। अभी डॉक्टर का नंबर दिया जाएगा आपको, उस पर कांटेक्ट कीजिए ओके। अगर कुछ हो तो। कुछ नहीं होना चाहिए, केयर से जाओ, आपको फिटनेस टू फ्लाई और जो भी ट्रैवल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सब कुछ मिल जाएगा, दवा मिलेगा, 5 डेज लीजिए, स्टिचेस पूरे निकल जाएंगे। ओके। एक मेडिकल लिस्ट लिख देना सर मुझे। मिल जाएगा, बस। वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सर। यू वेलकम। टेक केयर। यू टेक आउट द सूचर स्ट्रेट अवे। ऑलराइट। एक्चुअली मैं अनफिट हो गया था नेवी के लिए, अच्छा, तो उसकी वजह से मुझे दोबारा करवाना पड़ा। ओके। तो वो जो होता है कि जल्दी जल्दी करवाएं ठीक हो जाए, वो डॉक्टर ने कहा दिया कर दूंगा ठीक, पर किया नहीं। आपका तो रिजल्ट मैंने देख लिया, देखते साथ वो पहले वाला ऑपरेशन तो बिना वो बेहोश हुए किया था, वो सुन करके किया था पहले ओ वाला। बाप रे। तो मैं पहले वाला ऑपरेशन करवा लिया इतना जोर से कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, भाई ये प्रॉब्लम है डेविएटेड की, ठीक हो जाए। मुझे नहीं मालूम था कि ये प्रॉब्लम मेरी बड़ी है भाई। वो पहले से उसने करे अकेली सेप्टोप्लास्टी की, फिर सेप्टोराइनोप्लास्टी की, अब उसके बाद अभी ये राइनोप्लास्टी हुई है, ये पता लग रहा है राइनोप्लास्टी है। ठीक है, टेक केयर, बाय।